Hello bachcho, welcome to JEENious classes. Today we are going to start with a new series called functions. और एक चीज हम बोल सकते हैं कि today's class will be very interesting. Why? Because function is such a chapter where you will find interest in each and every part of this chapter. So आज हम लोग का first class है. Today we are going to discuss about the definition of function. Function किसको बोलते हैं? And number two, how to identify functions from graphs. So let's start the class. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget to comment me if you have faced any difficulty during this lecture. So let's begin. First thing that we will know is that what is a function. देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि what is our relation. Relation किसको बोलते हैं? No, we know that whenever we impose some conditions in Cartesian product of two sets, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या हो जाता है? रिलेशन. जैसे मानो हम एक रिलेशन ले रहे हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर एरो डायग्राम. यहां पर मानो 1 2 3 है एंड यहां पर एलिमेंट्स है, लेट अस से ए बी एंड सी. नाउ 1 इज से मैप्ड विथ ए, 2 इज से मैप्ड विथ सी. दिस इज अ रिलेशन. इट कैन बी अ रिलेशन. ओके, let me take another example. Say 1, 2, 3 and again the same elements in B, A, B, C. 1 is mapped with A, 1 is mapped with B, 2 is mapped with B, 3 is mapped with C. It's another relation. Okay, let me take the last one. 1, 2, 3 and this is A, B, C. 1 is mapped with A, 2 is mapped with A, 3 is mapped with B. Now look it carefully. All these three are relations. Okay? Now, if I impose some more conditions in relation, it becomes a function. And what are those conditions? I will tell you one by one, but before that, let me just remind you that when 1 is mapped with A, say in this case 1 is mapped with A, then this A is called image of 1. This we all know. और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 is the pre-image of A. Similarly, हम लोग क्या बोलेंगे? A is the image of 2 यहां पर, because 2 is mapped with A, और 2 is the pre-image of A. Similarly, B is the image of 3 and 3 is the pre-image of B. Exactly. Now, ये जो relation है, relation को हम लोग function convert करने के लिए I told you that I am going to impose some conditions. The first condition is that all elements in set A must have an image in set B. This is the first condition. क्या बोला? All the elements that are present in set A must have an image in set B. ये होना ही है. Number 2, सिर्फ image होने से ही वो फंक्शन नहीं होगा. It has to fulfill the second condition also. वो क्या है? Images should be unique. Images should be unique. मतलब क्या हुआ? अगर इमेज तो हर एलिमेंट ऑफ सेट को होना ही है, लेकिन हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा. दैट इज द इमेज इज यूनिक. इमेज एक होना है, कोई एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? जैसे देखो, द फर्स्ट रिलेशन दैट आई हैव शोन यू,
My question is this relation a function? No. Why? Because the first condition violates. First condition में क्या है? All the elements of set A must have an image in set B. यहां पर देखो, element 3 is present in set A which does not have any image in set B. इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन नहीं है. It is a relation, but it is not a function. अभी सेकेंड केस ऑब्जर्व करो, यहां पर हर एक एलिमेंट का इमेज है, बट स्टिल दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज सेकेंड कंडीशन वायलेट्स इन दिस रिलेशन. सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था? इमेजेस शुड बी यूनिक. मतलब एक एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस इन सेट बी. यहां पर देखो, जो एलिमेंट 1 है इन सेट ए, it has two images in set B as A and B. समझ में गया? ये जो एलिमेंट 1 है, इसका 2 इमेजेस है इन सेट B, which violates our second rule. Therefore, it is again not a function. Okay? It is a relation, but it is not a function. Now observe this one, the last one. All elements in set A, they have an images. All the elements they have image. जैसे मानो 1 का इमेज इज A, 2 का इमेज इज 2, 3 का इमेज इज B. As well as कोई भी एलिमेंट का इन सेट A उसका 2 इमेज नहीं है. ऑब्जर्व करो, कोई भी एलिमेंट का 2 इमेजेस नहीं है. मतलब ये फंक्शन का all those 2 conditions are fulfilling. So this relation को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन. इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ फंक्शन. ओके? और कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ऐसे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ऐसे हम लोग लिखते हैं. सो दिस इज अ फंक्शन विच इज रिटन लाइक एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इज इट क्लियर? ओके. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग. All the elements in set A is what called your domain. क्या बोलते हैं? डोमेन. डोमेन क्या है? All elements in set A. जैसे in this case, our domain, the elements in domain set are 1, 2 and 3. Because ये 1, 2 and 3 ये तीनों ही तो elements है set A में. और set A में जितना elements है in a function में, सो ए में जितना एलिमेंट्स है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन. ओके. नाउ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी इज व्हाट कॉल्ड योर कोडोमेन. ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी इज व्हाट कॉल्ड योर कोडोमेन. जैसे यहां पर कोडोमेन क्या होगा? ए, बी एंड सी. बिकॉज ए बी सी ये तीनों एलिमेंट है मेरा किसमें? सेट बी में. और सेट बी में जितना एलिमेंट्स है ऑल आर कॉल्ड कोडोमेन. राइट? Another term we are using here is what called your range. रेंज किसको बोलते हैं? रेंज है those elements in set B which has its pre-image in set A. वो सब एलिमेंट जिसका प्री इमेज सेट ए में है, वो एलिमेंट विल कम इन द सेट रेंज. मतलब इन दिस एग्जाम्पल आवर रेंज इज ए एंड बी. अच्छा से देखो, ए एंड बी आर द 2 एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज सेट ए में है. तो ये सब एलिमेंट मेरा कहां पर आएगा? इट विल कम अंडर द सेट रेंज. इसके लिए देखो बच्चों, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन. रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन. याद रखना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ बच्चों एक चीज देखो, अगर मानो कि हम एक एलिमेंट सेट ए से लिया है, कोई भी एक एलिमेंट हमने सेट ए से लिया है और उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक्स. ओके. और कोई भी एलिमेंट एक हमने बी से सिलेक्ट किया है, आर्बिटरी एलिमेंट, लेट अस से दैट इज वाई. इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों देखो, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. माय क्वेश्चन इज एक एक्स के लिए
for 1x, how many number of y's you are going to get? कितने नंबर ऑफ y's तुमको मिलेगा एक x के लिए? यहां पर कोई भी एक x तुम उठाओ, इधर 1 उठाओ या 2 उठाओ या 3 उठाओ, कुछ भी ले लो, लेकिन उसका कितना नंबर ऑफ y's विल बी देयर इन सेट बी? ओनली 1. और वही तो डेफिनेशन है फंक्शन का, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो हम लोग का सेट ए में है उसका यूनिक इमेज रहना है इन सेट बी. मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम ए से उठाए उसका सिर्फ एक इमेज होगा सेट बी में. दैट इज फॉर 1x, आई एम राइटिंग इट हियर, फॉर 1x there will be always 1y if it is a function. If it is a function, मतलब क्या हुआ? कोई भी फंक्शन का अगर एक x हम ले, that will give you only 1y, not more than 1y, then it is a function, otherwise not. ओके बच्चों, एक चीज और देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड. रादर दिस इज द पॉइंट बाय वर्च्यू ऑफ विच कोई भी ग्राफ अगर तुमको दे दे, वहां से तुमको पता लगेगा कि वो फंक्शन है या रिलेशन है. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी विल सी वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट फ्रॉम एनी ग्राफ. बच्चों एक चीज देखो, यहां पर f is basically a function from a to b. अभी बच्चों ये 1 अगर हम x का जगह में प्लेस करें, then it is going to give you a. अगर मानो इस x का जगह में अगर हम 2 पुट करें, so it is again going to give you a. और अगर मानो कि x का जगह में हम 3 पुट करें, so it is going to give you b. ऐसे ही तो मैपिंग हुआ है. 2 is mapped with A, 3 is mapped with B. मतलब in place of X, if we choose 3, we are going to get the value of Y as B. Is it clear? So, generally we can write this thing as, in a general form we can write this thing as f of X is nothing but your Y. This is how we write. Y is nothing but f of X. Is it clear? Okay. This is clear. It is not a function. This is also not a function. Why? Because in this case, observe carefully, in this case, there is an element x2 which does not have any image in set A. मतलब ये पहला जो condition है वो violate हो रहा है. मतलब ये function नहीं है. Number 2, all the elements they have an image. लेकिन ये जो element x1 है या x2 है, इसका कितना images है in set B? 2 करके. लेकिन मेरा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? इमेजेस शुड बी यूनिक. मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, जो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए. लेट मी टेक द थर्ड वन. सी दिस वन, इट इज अ फंक्शन. एंड फोर्थ वन, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, राइट? बिकॉज दोनों ही कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इट हैज एन इमेज इन सेट बी, और इमेजेस जो है वो है यूनिक, राइट? ओके, चलो. Now, which of the following graphs are the graphs of function? अभी अभी हम लोग क्या सीखा? एक x के लिए अगर तुम्हें एक y मिल रहे तो मतलब वो फंक्शन है. अगर एक x के लिए you are getting more than 1y, then it is not a function, it is a relation, right? Let us take this. देखो यहां पर 6 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं. The very first one observe करो. This one please observe. हमने क्या बोला? एक x के लिए मुझे एक y मिलना है अगर ये फंक्शन है तो. तुम एक काम करो, कोई भी एक x तुम सिलेक्ट करो. These are all what? These are all fixed x. कोई भी एक x सिलेक्ट करो तो कॉरस्पॉन्डिंग y तुम्हें कितना मिल जाए? कॉरस्पॉन्डिंग y का मतलब वो पॉइंट से अगर हम एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करें तो वो कर्व को कितना पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट डिटरमाइंस how many number of y's you are getting for that particular x. Okay? So, यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें for this particular x, देखो बच्चों, ये कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं.
मतलब फॉर दिस x यू आर गेटिंग 2y's, एक x के लिए मुझे 2y मिल रहे, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक x के लिए मुझे सिर्फ एक ही y मिलना है, 2y नहीं। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा बच्चों, सेकेंड वाला देखो, कोई भी एक x ले लो और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये कर्व को कितना पॉइंट पे टच कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस पर्टिकुलर x के लिए मेरा 2y है। फॉर 1x यू आर गेटिंग 2y, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड योर वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट, जहां से हम लोग चेक करते ग्राफ से whether it is a function or not। बच्चों थर्ड देखो, ये थर्ड में क्या है? कोई भी अगर तुम एक x ले लो, कोई भी x तुम कहीं पर ले लो, it is going to intersect the curve at only one point। कोई भी अगर तुम x यहां पर लेते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y कितना मिल रहा है? एक ही तो मिल रहा है, मतलब वो वर्टिकल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मतलब वी आर ऑलवेज गेटिंग 1y फॉर 1x, करेक्ट? सो इट इज अ फंक्शन, दिस वन इज अ फंक्शन, ओके। नाउ लेट अस कम फॉर नंबर 4। इस 4 में देखो क्या हो रहा है। अगर कोई भी एक x अगर हम लेते हैं, कोई भी अगर x लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज गोइंग टू टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। बच्चों देखो यहां पर, देखो बच्चों यहां पर हमने सॉलिड डॉट दिया है। सॉलिड डॉट मतलब दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड, दैट पॉइंट इज क्लोज्ड। तो कहीं पर तुम एक x ले लो, कहीं पर तुम x ले लो, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी x लेके अगर तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे फॉर फिगर नंबर 4, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, मतलब दिस इज वेरी मच अ फंक्शन। अच्छा अभी देखो नंबर 5। इस 5 में क्या हो रहा है? कोई भी अगर हम एक x लेते हैं, मानो यहां पर एक x लिया है, सपोज दिस इज दैट x। सो अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, देखो बच्चों ये क्या हो रहा है? ये कर्व को कितना पॉइंट पे टच कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच कर रहा है। समझ में जा रहा है? क्योंकि मेरा कर्व कैसे था? ऐसा था। अगर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग x है, जो y होगा वो क्या होगा? इस हर जगह में वो टच करेगा, मतलब एक x के लिए तुम्हें बहुत सारा y's मिल रहे, राइट? सो इट इज नॉट एट ऑल अ फंक्शन, दिस इज नॉट एट ऑल अ फंक्शन। वेरी गुड। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6। इस फिगर में देखो, कोई भी अगर हम एक x लेते हैं, कोई भी अगर हम एक x लेते हैं, इट इज अगेन गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। मतलब क्या हुआ? एक x के लिए यू आर गेटिंग 1y, so it is 100% a function. Is it clear to all of you? Absolutely? Okay. अभी बाकी 4 देखो, अभी हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, तुम लोग रिकॉग्नाइज करो। ये दिस इज वेरी मच अ फंक्शन। क्यों? कहीं पर तुम एक x ले लो, कहीं पर तुम एक x ले लो, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, सो इट इज वेरी मच अ फंक्शन। लेकिन यहां पर क्या होगा? बहुत सारा पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर x। ये x के लिए कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, राइट? ये x के लिए 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। इज इट क्लियर? यहां पर कोई भी x के लिए इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, मतलब ये मेरा फंक्शन है। एंड व्हाट अबाउट दिस, द लास्ट वन? यहां पर कोई भी x एक तुम ड्रॉ करो, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट मेनी पॉइंट्स, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेक whether a graph is a function or not by means of vertical line test. Is it clear? Okay, chalo next में
अभी बच्चों, let us start with little bit of permutation and combination in functions. जैसे यहां पर बोला है कि how many number of functions possible from A to B. मान लो कि सेट A में we are having m elements. We are having m elements. और सेट B में हम लोग का पास है मान लो n एलिमेंट्स. अभी सवाल यह आ रहा है कि यहां पर कितना नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल, मतलब कितना नंबर ऑफ फंक्शंस इज पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. देखो बच्चों, अगर यहां पर मेरा सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है. अगर कोई भी तुम एक एलिमेंट चूज करते हो तो उसका साथ हम कितने तरीके से सेट बी में मैप कर सकते. सेट बी में मेरा n एलिमेंट्स है, मतलब यहां पर जो एक एलिमेंट है इट कैन बी मैप्ड विथ n डिफरेंट वेज विथ सेट बी एलिमेंट. यस और नो? सेट बी में जो एलिमेंट है, मेरा जो सेट ए में जो पहला वाला जो एलिमेंट है वो कितने तरीके से मैप्ड हो सकता है, n वे से. ओके. सेकेंड जो एलिमेंट है इन सेट बी वो कितने तरीके से मैप्ड हो सकता है, अगेन n वे से. थर्ड एलिमेंट अगेन n वे से, और ऐसे करते करते जाएगा m एलिमेंट्स तक. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल इज n इंटू n इंटू n सो ऑन टिल m टर्म्स. यस और नो? यहां से यहां तक कितना नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, m टर्म्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट सेट बी में n वे से मैप्ड हो सकता है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. इज इट क्लियर? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ functions possible from set A to set B is n to the power m. याद रहेगा? सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल इज n टू द पावर m, जहां पर सेट A में m एलिमेंट्स है और सेट B में n एलिमेंट्स है. राइट? ओके. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. यहां पर क्या बोला है कि मेरा जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3. These are the elements of set A. Let us say this is my set A, we are assuming, and this is my set B where we are having only two elements, 100 and 101. Right? अभी क्या बोला है कि what is the total number of ways or total number of functions possible such that ये सबको अगर हम ऐड करें it will give you an even number. It will give you an even number, right? Okay, एक काम करते हैं. यहां पर मेरा सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है. पहला जो 9 एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट को छोड़ दो, 9 जो एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट कैन बी मैप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, in two ways. One can either mapped with 100 or one can be mapped with 101. मतलब ये जो 9 एलिमेंट्स, पहला जो 9 एलिमेंट्स है, ये कितने वे से फंक्शन बना सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 to the power 9. ओके. अच्छा, ये जो 2 to the power 9 वेज हुआ, मेरा एक एलिमेंट अभी बचा है इन सेट ए. ऐसा सोचो कि हर एक एलिमेंट ऐसा करके परम्यूट हुआ है सो दैट द सम जो कर रहे हम वो इवन आ रहा है. देखो बच्चों, यहां पर तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. जैसे F1, F2, F3, इसको तुम जब मैप किए हो इधर विथ 100 और 101, तो सम कितना होगा, F1, F2 ऐसे करते करते अगर जाएगा F9 तक, सम क्या हो सकता है, 2 सम हो सकता है. मतलब 2 डिफरेंट सम्स कैन कम, इधर इट विल बी इवन और इट विल बी ऑड. इसको छोड़ के तो और कोई तरीका ही नहीं है. अच्छा, इसके लिए हमने अभी तक द एलिमेंट 10 जो है सेट ए में अभी तक हमने मैप नहीं किया है, बिकॉज टू मेक दिस नंबर एन इवन नंबर, मान लो
F1 से F9 तक वो इवन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, F10 को हम इवन के साथ इक्वेट कर देंगे। मतलब 10 जो एलिमेंट 10 है इन सेट A, इट विल बी मैप्ड विथ 100 इन सेट B। फिर क्या होगा, बाकी 9 तक तो मेरा इवन था ही, अभी F10 भी इवन हो गया, मतलब इसको अगर ऐड करे तो रिजल्ट इज कमिंग टू बी इवन। ओके, मान लो वो ऑड है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 करते करते F9 तक इसका जो सम है ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो मेक द सम इवन हम क्या करेंगे, F of 10 को हम इक्वेट कर देंगे विद द ऑड वन, दैट इज 101, बिकॉज two odd numbers when added it gives us an even number। क्लियर हुआ? इसके लिए हम 10 को पकड़ के रखे थे, उसको मैप हम नहीं किए थे, राइट? 9 तक हमने मैप किए हैं, फिर देखा कि वो जो सम हो रहा है 9 तक वो इवन हो रहा है या ऑड हो रहा है। अगर इवन हो रहा है तो F10 को हम इवन का साथ इक्वेट कर दिया, मतलब मैप कर दिया, और अगर ऑड है तो उसको हम ऑड, मतलब F10 को हम ऑड का साथ मैप कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑड और ऑड अगर जब ऐड करोगे इट विल गिव यू एन इवन नंबर, right? Therefore, total number of such functions possible is 2 to the power 9, that is 512 functions are possible which will fulfill our this condition given. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. So this one, for which of the following y can be a function of x? देखो बच्चों, अगर ग्राफ देगा तो वहां से हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करके बोल देंगे विच वन इज अ फंक्शन एंड विच वन इज नॉट अ फंक्शन। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या हम लोग सीखा कि एक एक्स के लिए वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट ओनली वन वाई। अगर दोनों वाई या मोर देन वन वाई हमको मिल गया तो वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट वन। x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y minus k whole square is r square minus x minus h whole square। मतलब y minus k will be plus minus root over r square minus x minus h का whole square। इसका मतलब हुआ y equals to k plus minus root over आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी बच्चों देखो, यहां पर अगर हम एक एक्स पुट करें, इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ एक्स इन द राइट हैंड साइड, यू आर गोइंग टू हैव टू वैल्यूज ऑफ वाई, इजंट इट सो? एक्स का अगर एक वैल्यू हम पुट करें तो वाई का मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है? 2 वैल्यूज मिल रहे, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक एक्स के लिए मुझे एक y मिलना है, 2 y नहीं। ओके, सी द सेकेंड प्रॉब्लम, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ओवर ax। अभी यहां पर अगर हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करें विच इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली इन दिस केस, अगर हम यहां पर x का कोई भी एक पॉजिटिव रियल वैल्यू पुट करें, सो वी आर गोइंग टू हैव 2 y's। मतलब एक x के लिए मुझे कितना y मिल रहा है? 2 y मिल रहे, राइट? देयरफॉर अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। चलो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब y is coming to plus minus root over x square minus a square। अभी बच्चों देखो, यहां पर अगर एक x हम पुट करें, कोई भी एक x पुट करें, उसके लिए मुझे कितना वैल्यूज ऑफ y मिल रहा है? 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। y का एक प्लस लेके एक माइनस लेके, मतलब एक x के लिए तुम्हें 2 y मिल रहे हैं, मतलब अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? ओके, now let me take the another one। See, x to the power 6 equals to y cube। ये क्या फंक्शन है? Let us check। y cube अगर x to the power 6 है, then y can be written as x to the power 6 by 3, that gives us y is equals to x square।
अभी बच्चों अगर x का कोई भी अगर हम वैल्यू पुट करें, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मुझे कितना मिलेगा? एक मिलेगा या मोर देन वन मिलेगा? ओनली वन वी विल गेट। कोई भी एक x के लिए मुझे एक ही y मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर वन x वी आर गेटिंग वन y, हेंस इट इज अ फंक्शन। क्लियर हुआ? एब्सोल्युटली ओके। सो दिस क्वेश्चन बोला है इफ एफ एक्स इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, देन प्रूव दैट एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू दिस वन। बड़ी सिंपल है। व्हाट इज एफ एक्स प्लस एफ वाई? लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स अगर लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है, so in place of this x, if I put y, we are going to have, बराबर। अभी लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग सो कितना मिल रहा है? 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ओके, सो यहां पर अगर हम ओपन करें तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। इज इट क्लियर? सो यहां पर मेरा क्या आंसर आ रहा है? डिवाइडेड बाई अभी हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं 1 प्लस एक्स वाई से, सो दिस थिंग इज कमिंग 1 प्लस, और नीचे में आ रहे 1 माइनस, इज इट क्लियर? अभी बच्चों देखो यहां पर मेरा एफ एक्स क्या है? log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई कितना आएगा? एक्चुअली इसमें जो आंसर होगा वो कितना आएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, और यही तो आया है यहां पर। मतलब इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। समझ में गया? सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड? वी हैव प्रूव्ड दैट एफ एक्स प्लस एफ वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट मी मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर देखो एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स, सो एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा? दिस विल बी 1 बाई एक्स प्लस एक्स। क्लियर? ओके, एंड व्हाट विल बी योर एफ ऑफ एक्स क्यूब? इट विल बी दिस, राइट? नाउ एफ क्यूब एक्स माइनस एफ एक्स क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? अभी देखो बच्चों, एफ क्यूब एक्स मतलब क्या है बोलो तो? एफ एक्स का होल क्यूब एक्चुअली, राइट? दिस इज योर एफ क्यूब एक्स। मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 times ab into a plus b minus x cube minus 1 by x cube. So it is coming like 3 times x plus 1 by x. अभी बच्चों देखो f of 1 by x क्या है? 1 by x plus x, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3 times f of 1 by x. Is it clear?
So what we have proved? We have proved that f cube x minus fx cube is nothing but 3 times f of 1 by x. Is it clear to all of you? Okay. See this problem. Fx given here is a minus x to the power n whole to the power 1 by n, जहां पर a 0 से ज्यादा है, a is greater than 0 and n belongs to natural number. Okay? अभी हमको क्या प्रूफ करना है? f of fx, मतलब इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग fx और उसको प्रूफ क्या करना है? इक्वल्स टू x. लेट अस चेक. इन प्लेस ऑफ x अगर हम fx पुट कर दें तो राइट हैंड साइड में भी वही सेम चीज करना पड़ेगा. इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट fx. बराबर. अभी देखो इस fx का प्लेस में, इन प्लेस ऑफ दिस fx I am putting this. So what you are getting? Clear? So अंदर में क्या हो रहा है? ये n और ये n कैंसिल हो रहा है. फिर मुझे बचा क्या है? Now if I open the bracket, so कितना आ रहा है? मतलब आंसर आ रहा है x. Proved. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Let us move for the next problem. देखो यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है कि fx is 1 by 1 plus e to the power minus x. अभी मुझे ये एक्सप्रेशन का साम निकालना है. ओके? इसका साम निकालना है. कैसे निकालेंगे? ओके. देखो तो बच्चों fx मेरा क्या है? इट इज बेसिकली e to the power x by 1 plus e to the power x, राइट? अभी f of minus x मेरा कितना आ रहा है? e to the power minus x by 1 plus e to the power minus x, मतलब कितना हो रहा है? 1 by e to the power x plus 1. अभी इन दोनों को अगर हम ऐड करें, fx प्लस f of माइनस x को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है बच्चों? प्लस 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1, मतलब e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1. देयरफॉर fx प्लस f of माइनस x ये आ रहा है कितना? 1. इज इट क्लियर? अभी ऑब्जर्व करो, जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच इज योर s, वो क्या है? f4. यहां पर f4 है और f of माइनस 4 भी यहां पर है. तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, राइट? उसके बाद क्या होगा? f of 3, f of माइनस 3 एक ब्रैकेट में, f of 2, f of माइनस 2 एक ब्रैकेट में, f of 1, f of माइनस 1 एक ब्रैकेट में, राइट? और बचा क्या है मेरा? f of 0, राइट? अभी देखो बच्चों, f4 प्लस f of माइनस 4 अकॉर्डिंग टू दिस वन, fx प्लस f of माइनस x कितना हो रहा है? 1. मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 1. सिमिलरली इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1. ओके? नाउ व्हाट इज f0? देखो fx इज दिस, सो व्हाट विल बी माई f0? f0 will be 1 by 1 plus e to the power 0. That is 1 by 2. Okay? मतलब यहां पर आएगा 1 by 2. So आंसर कितना होगा? 9 by 2. That's your answer. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Let me take another problem. It's a fantastic sum. See this. They have said that for non-negative integers m and n, मतलब m and n क्या वैल्यूज लेंगे? Either it will take 0 or it will take more than 0 integers, but more than 0. That is called non-negative integers. Okay. और फंक्शन डिफाइन कैसे किया है? ऐसे अभी बोला है f of 1,1 निकालो. f of 1,1 निकालो. कैसे निकालेंगे? देखो f of mn को हम लोग ये तीनों वे से लिख सकते हैं, either of these three ways according to these conditions.
मुझे निकालना है f of 1,1. मतलब ये 1 क्या 0 नहीं है? 1 तो 0 नहीं है, मतलब it is fulfilling this condition, the last one. Yes or no? Because यहां पर m equals to 1, which is not equals to 0, n equals to 1, which is again not equals to 0. Therefore, this condition is fulfilling. Therefore, f of 1, 1 will give you what? f of 0, f of 1, 0. समझ में गया? In place of m, I am writing 1. In place of n, I am writing 1. So we are getting this. Fine. Now, what is f of 1, 0? मतलब यहां पर m क्या है? मेरा m है 1, which is not equals to 0, और n मेरा है 0. So m is not equals to 0, n equals to 0. Which one is fulfilling this condition? This function. So in this place, I can write f of 1, 0 will be f of, in place of m, I'm writing 1. So this is 0, 1. Is this much clear to all of you? Because f of 1, 0 will take this one, as m is not equals to 0 and n equals to 0. So f of 0, 1 is coming here because in place of m, I'm writing 1 and the second coordinate is 1. So I've written it as 1 only. Now, f of 0, 1. What is f of 0, 1? Think about it. Here, m is 0, but n is not equals to 0. m is 0 matlab, your function will take this value. It is n plus 1. Matlab, f of 0, 1, this one will give you what? m, n is n plus 1 right now. Here n is 1. Here n is 1. Therefore, the answer will be 1 plus 1, which is nothing but 2. Therefore, this one will give you f of 0, 2. Yes or no? Pakka? Okay. अभी बच्चों देखो, this is f of 0, 2. मतलब क्या हुआ? m equals to 0 and n equals to 2. लेकिन m equals to 0 होने से f of mn का वैल्यू होता है क्या? n plus 1. मतलब क्या होगा? In this case, what will happen? It will be 2 plus 1 because here n is 2. 2 plus 1, which is nothing but 3. Is it clear? Therefore, f of 1, 1 is nothing but 3 in this case. Is it clear? Absolutely. Okay, so let us end our class here. I hope you have enjoyed the class. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And if you have faced any problem during my class, please do comment. We are having our learning app in Google Play Store. You can download the app. Link has been given in the description box. There I used to come twice a week live. There you can solve your doubts and ask me any sort of questions in mathematics. So keep learning, keep watching, and stay tuned to us.